ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ پونچھ ضلع کے بالاکوٹ سیکٹر میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 ملیٹنٹ ہلاک، ہتھیار و گولہ بارود برآمد۔ جموں خطے میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر بی ایس ایف نے زیر زمین ٹنلوں کا پتہ لگانے کے لیے پہلی بار کیے خصوصی آلات نصب۔ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے جموں میں منعقدہ یوٹی سطح کا 3 روزہ تربیتی پروگرام اختتام پذیر۔ اور ترقی یافتہ بھارت بنانے کے لیے ملک بنیادی ڈھانچے، سرمایہ کاری، اختراع اور شمولیت کے 4 ستونوں پر کر رہا ہے توجہ مرکوز وزیر اعظم نریندر مودی۔ خبریں تفصیل سے۔ پونچھ ضلع کے بالاکوٹ سیکٹر میں سیکورٹی فورسز کے کارروائی کے دوران 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مارے گئے دونوں ملیٹنٹ ضلع کے بالائی ڈھانگری گاؤں میں اس مہینے کی 1 اور 2 تاریخ کو ہوئے ملیٹنٹ حملوں، جن میں 2 بچوں سمیت 7 عام لوگ ہلاک ہوئے، میں ملوث تھے۔ محکمہ دفاع کے ترجمان کے مطابق کل شام بالاکوٹ سیکٹر میں کنٹرول لائن کے نزدیک چوکس فوجیوں نے مشتبہ نقل و حرکت دیکھی اور کچھ دیر کی گولہ باری میں یہ 2 ملیٹنٹ مارے گئے۔ اس کارروائی کے حوالے سے فوج کی 13 سیکٹر RR کے کمانڈر بریگیڈیئر پی آچاریہ نے میڈیا کو بتایا کہ کل شام 7 بجے چاق و چوبند فوجی اہلکاروں کو مذکور علاقے میں مشتبہ حرکت کا احساس ہوا اور تقریباً 7:45 بجے کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فائرنگ شروع ہوئی، جس کے بعد وہاں تلاشی کارروائی شروع کی گئی، جس دوران 2 لاشیں، ایک AK-47 رائفل، ایک AK-56 رائفل اور دیگر ہتھیار و گولہ بارود اور قابل اعتراض مواد برآمد کیا گیا۔ اس سرچ کی کارروائی میں ہمیں 2 باڈیز ملی ہے، ہتھیار، میگزین اور ایمونیشن ملا ہے۔ ابھی جو ہمیں سٹورز ملے ہیں اس میں شامل ہے ایک AK-47 رائفل، ایک ماڈیفائڈ AK-56 رائفل، ایک چائنیز پسٹل، 2 چائنیز ہینڈ گرنیڈ، 2 ہائی ایکسپلوزیو IED ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹیلی فون بھی ملا ہے۔ اس ایریا کا سرچ آپریشن ابھی جاری ہے۔ دریا 1 جنوری کو ڈانگری گاؤں میں ملیٹنٹ حملے میں زخمی ہوئے ایک اور شخص پرنس شرما کی گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال جموں میں موت واقع ہو گئی ہے۔ اس طرح ان ملیٹنٹ حملوں میں مارے گئے افراد کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ ان کی میت کو جب آبائی گاؤں پہنچایا گیا تو وہاں ایک بار پھر ماتم کا سماں چھا گیا اور رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ سرحدی حفاظتی فورس نے جموں خطے میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر ملیٹنٹوں کی طرف سے استعمال کی جانے والی زیر زمین ٹنلوں کا پتہ لگانے کے لیے پہلی بار خصوصی ڈرون ماؤنٹڈ گراؤنڈ پینیٹریشن ریڈار نصب کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اندرون ملک تیار کیے گئے یہ تکنیکی آلات حال ہی میں نصب کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ زیر زمین ٹنلوں کو اس پار سے ہتھیار و گولہ بارود اور منشیات سمگل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ BSF نے گزشتہ 3 برسوں کے دوران اس خطے میں 192 کلومیٹر کے دائرے میں تقریباً 5 زیر زمین ٹنلوں کا پتہ لگایا ہے۔ کنونشن سینٹر جموں میں ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹل پروگرام کے حوالے سے یوٹی سطح کا 3 روزہ تربیتی پروگرام اختتام کو پہنچا ہے۔ اس پروگرام کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا تھا۔ اس 3 روزہ پروگرام کے دوران زرعی اور اس سے منسلک سیکٹروں سے وابستہ ماہرین نے زراعت، باغبانی، سری کلچر، ایپی کلچر، اینیمل ہسبنڈری، شیپ ہسبنڈری اور فشریز وغیرہ محکموں کے افسروں کو تربیت فراہم کی۔ آج آخری روز ایگریکلچر پروڈکشن اور فارمرز ویلفیئر محکمے کے فائنانشل کمشنر و ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کہا کہ پروگرام منعقد کرنے کا مقصد ایگریکلچر سیکٹر کی مجموعی ترقی کے حوالے سے منظور شدہ 29 پروجیکٹوں کی عمل آوری کے لیے متحرک اور تیار ہونا ہے۔ واضح ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں انتظامی کونسل نے جموں کشمیر میں زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کی مجموعی ترقی کے لیے یوٹی سطح کی اپیکس کمیٹی کی طرف سے تجویز کیے گئے ان 29 پروجیکٹوں کے عملانے کو پہلے ہی منظوری دی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ ان کی پارٹی کا ہمیشہ ہی یہ منشور رہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کے مفادات اور حقوق کو تحفظ ملے۔ شیر کشمیر بھون جموں میں جموں ضلع کی ورکنگ کمیٹی کے اراکین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ LG انتظامیہ یہاں کے عوام کو درپیش مشکلات دور کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری اور مہنگائی عروج پر ہے اور عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر میں حالات پٹری پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ریاست کا درجہ اور خصوصی پوزیشن بحال کی جائے۔ اس موقع پر پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ جموں کشمیر کانگریس کے سابق صدر غلام احمد میر نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا ایک عوامی تحریک ہے اور یہ ملک کے لیے نہ کسی پارٹی کے لیے
और ये मुल्क के लिए है न किसी पार्टी के लिए। अनंतनाग जिले के दूर उफ्तादा इलाके मती गावरन में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा का एहतमाम मुल्क में एक मुस्बत माहौल और एहसास तहफ़्फ़ुज़ कायम करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल पाई जा रही है वो किसी भी तरह इत्मीनान बख्श नहीं है और वक्त का तकाजा है कि सेक्युलर फोर्सेज को मुत्तहिद और मजबूत किया जाए। इस मौके पर पार्टी के कई लीडरों ने भी खिताब किया। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल गनी कोहली ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मौसूफ ने अवामी अहमियत के कई मामलात एलजी की नोटिस में लाए और राजौरी जिले के लोगों के कई मुतालबात भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखे। एलजी ने मौसूफ की तरफ से उठाए गए मामलात और मुतालबात गौर से सुने और जायज मुतालबात को पूरा करने की उन्हें यकीन दहानी कराई। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 163 नए मामलात सामने आए हैं, जबकि इस अरसे के दौरान 247 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में 58,938 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए, जबकि इस मुहिम के तहत अभी तक 220 करोड़ 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में सरे 2,423 कोविड मरीज जेर इलाज हैं, जबकि ऐसे मरीजों की सेहतयाब होने की शरह फिलहाल 98.8% है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम एसएफ हामिद ने चिरार शरीफ में जियारत हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुत्तसिल तालाब कलान का तजदीद व मरम्मत के बाद इफ्तिताह किया है। वाज़ेह रहे कि सरकार की अमृतदौम स्कीम के तहत इस तालाब की तजदीद व मरम्मत का काम अमल में लाया गया है और इस प्रोजेक्ट पर इरीगेशन व फ्लड कंट्रोल और अर्बन लोकल बॉडीज के मुश्तरका पहल के तहत 29 लाख रुपए सर्व किए गए। इस पहल के लिए मकामी लोगों ने एलजी और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर ने एक बार फिर वजाहत की है कि महकमे की तरफ से वक्तन फवक्तन जारी किए गए हुक्मनामों के तहत फासलाती या रेगुलर मोड के जरिए डिग्रियों को यकसा तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। मौसूफ ने यह वाज़ेह कर दिया कि कोई भी उस्ताद सभी लवाजमात पूरा करके फासलाती मोड के जरिए डिग्री हासिल कर सकता है। देखिए, अगर कोई भी बंदा कोई भी सर्विस कैंडिडेट आउट ऑफ यूटी जाना चाहता है परस्यू ऑफ एजुकेशन, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 जीएडी का अप्रूवल चाहिए और उसके बाद ही गवर्नमेंट उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको परमिशन दे सकता है ये हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। सारिफिन की तरफ से शिकायत मिलने के बाद कि शहर में गोश्त फरोश इजाफी कीमतों पर गोश्त फरोख्त करते हैं कि पस मंजर में फूड सिविल सप्लाईज और उमूरी सारिफिन महकमे के इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान खिलाफ वर्जी करने की पादाश में 82 ऐसी दुकानों को सरमुहर कर दिया, जबकि 18 गोश्त फरोशों से 30,000 रुपये बतौर जुर्माना भी वसूल किया गया है। मुतल्लिका महकमे ने एक बार फिर गोश्त फरोशों से ताकीद की है कि वो महकमे की तरफ से मुश्तहर की गई कीमतों पर ही गोश्त फरोख्त करें, बसूरत दिगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमे ने शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-7011 भी दस्तयाब रखा है। मछली पालन महकमे के डायरेक्टर मोहम्मद फारूक डार ने महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों की अमल आवरी का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान मौसूफ ने अफसरान को हिदायत दी कि वह ऐसे इलाकों की निशानदही करें जहां प्राइवेट सेक्टर में फिशरीज के यूनिट लगाने की ज्यादा गुंजाइश हो, ताकि इस सेक्टर को फरोग देने के साथ साथ इससे वाबस्ता अफराद की फलाह बहबूद यकीनी बन सके। उन्होंने महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से जानकारी आम करने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर मुल्क बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी, इख्तिरा और शमूलियत की 4 सतहों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासतों की शराकतदारी के साथ तेज और पायदार माशी तरक्की के हुसूल पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर एतमाद जाहिर कर रही है और इसे ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है जो आलमी सप्लाई चेन में इस्तेकाम ला सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो फरसों
फरसुदा कवानीन, ज़ाबितों और बगैर सोची समझी अमल आवरियों को ख़त्म करने पर तवज्जो दें। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह मुल्क फिजिकल और समाजी बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। 3 रोज़ा प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। कन्वेंशन के पहले दिन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात, खेलों और नौजवानों के अमूर के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बैरून मुल्क आबाद भारतीय नौजवानों को भारत में इख्तराई काम और सरमायाकारी करने के लिए मदऊ किया है। उन्होंने कहा कि भारत में सरमायाकारी के वसी इम्कानात हैं और यहाँ खला और ड्रोन के शोबों में सरमायाकारी के नए इम्कानात हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल बाज़ाब्ता तौर पर इस कन्वेंशन का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर एक यादगारी टिकट जारी कर रहे हैं जो भारत के प्रवासी अफराद की महफूज और कानूनी नक्ल मकानी के लिए वक्फ है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी का आज सुबह इंतकाल हो गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। केसरीनाथ त्रिपाठी तवील अरसे से बीमार थे और कुछ दिनों से अस्पताल में दाखिल थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा है कि वो आला दर्जे के एक कानूनी अमूर के माहिर थे जिन्हें उनकी अवामी खिदमत के लिए याद रखा जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मज़ामीन में साल 2023 के लिए दाखिला लेने का अमल जारी है और यूनिवर्सिटी की तरफ से तकरीबन 300 प्रोग्रामों में दाखिला लेने के लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर है। यूनिवर्सिटी ने रवां साल जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री के लिए 3 खुसूसी प्रोग्राम मुतारिफ किए हैं जिनमें MA इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, MA इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और MA इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया शामिल हैं। मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में शदीद सर्दी की लहर जारी है जबकि शुमाली भारत के कई हिस्से कोहरे की गिरफ्त में हैं जिसकी वजह से 40 से ज्यादा रेलगाड़ियां आज भी ताखीर से चली। वादी में आज दिन भर मौसम अबर आलूद रहा और पहलगाम और कुपवाड़ा के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद बारिश का सिलसिला भी शुरू हुआ। इधर महकमे मौसमियात के एक एहलकार ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि मगरबी हवाओं के असर से आज वादी के बालाई इलाकों और पीर पंचाल रेंज में हल्की बारिश और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है जबकि मैदानी इलाकों में भी मौसम में तगय्युर और तबद्दुल का इम्कान है। प्रेडिक्ट किया हुआ है कि एक WD आ रहा है जो स्ट्रांग WD है जिसकी वजह से अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है कि हम पहलगाम और कुपवाड़ा में लाइट रेन स्टार्ट हो गई। उस हिसाब से जो सिस्टम अप्रोच कर रहा है इंशाल्लाह आज शाम तक ये पूरे कश्मीर डिवीजन को इंक्लूडिंग दिस बटवोर तक जो हमारा ये पीर पंजा रेंज आता है वहां तक लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो होगा। कल एक पॉज आएगा, कल दोपहर के बाद दोपहर से ही पॉज आएगा 2 दिन के लिए, लेकिन 11th और 12th को वाइड सेपरेट अगेन लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो कश्मीर डिवीजन में होगा जबकि फेयरली वाइड सेपरेट जम्मू डिवीजन में भी उन दिनों बारिशें होगी। यानी श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।